वेलकम टू रामबान। मैं हूं उमेश शिकारा और मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी हेल्थ जर्नी पर जहां हम हमारे कल्चर, हमारे जीन्स, हमारी फूड चॉइसेस को समझते हुए अपनी हेल्थ को समझ पाएंगे। In my experience in dealing with athletes, non-athletes, people coming from different age groups, reeling in pain because of structural alignment or imbalance or metabolic issues or overweight or neural issues, one interesting finding that came to light is that people were looking elsewhere. माने वो प्रॉब्लम की जड़ को नहीं देख पा रहे थे. And the reason, in my view, is perhaps that we need a broader lens to reach to the root cause of the problem. This podcast will help you to reach to the root cause of the problem, क्योंकि अगर हम रूट कॉज तक पहुंच गए तो इस विशाल चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे. और ये गलत नहीं होगा कहना that we need no less than a रामबाण to break into this चक्रव्यूह. आइए समझते हैं अपने इस जहां को और बनाते हैं रामबाण. वेलकम टू रामबाण. मैं हूं उमेश शिकारा और आज हम बात करेंगे वेट लॉस की इन वुमेन स्पेसिफिकली. पिछले एपिसोड में मैंने वेट लॉस की बात की और उसमें मैंने फैक्टर्स समझाए कि वेट गेन क्यों होता है, क्या प्रोसेस है, और वेट लॉस करने का क्या प्रोसेस है और वो क्यों नहीं हो पाता है, और क्यों हमारी जो एक्सरसाइज स्टिमुलस है या जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं क्यों वो कैलोरी बर्न नहीं कर पाते इतना कि हम वेट लॉस कर सकें जबकि हम घर का नॉर्मल खाना खाते हैं. With women, it is all the more intriguing and it makes it very interesting for people like researchers like me because women are more focused. Women eat less junk. Women are more, what do I say, healthy eater overall. Women are less alcoholic in general, and in percentage, yes, uh, almost maximal number don't even drink. So, क्या वो फैक्टर्स हैं, व्हाट इज ड्राइविंग देयर फैट गेन, इसके बारे में बात करेंगे. क्या कर सकते हैं हम उसको कम लाने के लिए. तो इन सब को कवर करने के लिए पहले मैं दो फैक्टर्स के ऊपर बात करूंगा which are very important factors. One is the structure, कि आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है, एंड देन इज द हार्मोन पार्ट. सो जो दो बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन यू कैन से, वन इज स्ट्रक्चर. वुमेन आर they are blessed with a certain structure you can say. और जहाँ पर फैट डिपोज ज़्यादा हैं आप उनको फैट डिपोज बोल लो, फैट स्टोरेज स्पेस बोल लो, फैट एल्मिराज बोल लो या कुछ भी बोल लो. माने आप women have more capacity to store fat as compared to men. And women generally tend to load their fat more on thighs and hip area. माने आपके thighs और hip area में ज़्यादा fat deposit होता है as compared to men. So that's the basic fundamental difference between the structure. And then within women, you come with different structures. So again, there are lean structures in women, and then there are structures which are short and slightly broader structures, I would call, where you gain fat differently, but again, more in the thighs and hip area. And then there are other structures as well. But most women that you would meet um, in today's life, um, they they are slightly overweight, many of them, and among them, many again are significantly overweight. But then when you talk about like factors like that, you're more focused. I mean, then what is bringing it? You eat well. Then why are you not able to lose weight, and why you gained fat in the first place? अब gaining fat के ऊपर हम बात नहीं करेंगे because in case of women it could be hormonal. So उसके अंदर बहुत सारे factors and that we'll discuss it and take it up in a separate episode altogether. So तो structure आया. अब स्ट्रक्चर के अंदर फर्क हमें पता लगा कि हमारे फैट डिपोज ज्यादा हैं और वहाँ फैट डिपोज अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से हमारे ज्यादा हैं. लाइक इन वुमेन यू कैन से दैट thigh and hip area, like I mentioned. So now the second factor, which is again a defining factor between men and women, is the hormones. तो जहाँ men
के लिए टेस्टोस्टेरोन है, वहाँ वुमेन के लिए एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोडायल है, या प्रोजेस्टेरोन भी बोल सकते हैं उसके साथ में। तो अब टेस्टोस्टेरोन बिल्ड्स मसल. Testosterone is very important for cognitive health. Testosterone for men is very important for overall health. So it's a health marker, you can say. For women, because of their fluctuations on depending on their period cycle and so many other factors, unfortunately, their estradiol or estrogen could actually become a fat gaining hormone. It adds fat to your body, right? There are situations where it can do a lot of damage as well. And then it goes up and down, this dysregularity is there. So I'll cover this hormone section and why we need to introduce hormone replacement therapy in women and why it is safe. What does the research say? The current research tell us, and what all you can do with it. What is the right time to do that? I'll try to cover it in a separate episode, but you can look it up on internet these days. The information is available there, and you will be able to understand the latest science. However, I would also cover it, but that requires a separate episode. In this episode, I'm talking about the structure and weight loss and metabolism. तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में क्या कॉम्प्लिकेशन, इस कॉम्प्लिकेशन के कारण हमारे वेट या कैलोरी बर्न में क्या फर्क आ सकता है. ज्यादातर लेडीज दैट आई हैव सीन walking in the parks or even running regularly and also carrying fat, I mean, are also overweight, even by little, but they are overweight, right? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक हमारा स्ट्रक्चर, we are born with a certain structure with certain bone density as we call it in science, but आप broadly आप बोल सकते हो कि एक बोन है और उस बोन का एक स्ट्रक्चर है. तो मेरा कुछ और है, सामने वाले का कुछ और है, इधर वाले का कुछ और है, तो हर एक का अलग है. पर आप समझिए कि उस बोन स्ट्रक्चर और उस मसल स्ट्रक्चर से आप एक एवरेज वेट कैलकुलेट करते हो कि यार आपका एवरेज वेट अराउंड 60 होना चाहिए. इट इज नेवर एक्यूरेट बाय द वे. somebody can be 55 and healthier, and somebody could be 65 and equally healthier. So average लेते हैं हम कि supposedly आपका 60 होना चाहिए depending on your height. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 60 होना चाहिए, आप 70 पे हैं, और आप फिर आफ्टर 40-45 years of age you take up exercising and you start worrying about your health and about your growing fat, and then you start walking. That's the first thing we do, and it's a fantastic exercise. Everybody should do that. तो आप वॉकिंग करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग जिम में जाते हैं. सब जगह पे वही प्रॉब्लम है, और वो सिमिलर परसिस्टेंट स्ट्रेस जो आप बॉडी को दे रहे हो. तो एक हमारे फिजिकलिटी में एक स्ट्रेस, एक बॉडी के स्ट्रेस को अगर हम समझें तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि पहली बार जब आपने कोई काम किया तो यू बर्न मोर कैलोरीज. 100th टाइम जब आपने वो काम किया, वही काम, तो यू बर्न लेस कैलोरीज. मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं रेगुलरली तो it is a good thing, but the amount of calories you burnt when you started walking was much more than the amount of calories that you are burning now after years of walking. तो आपकी जो कैलोरी बर्न है वो कम हो जाती है. Your body get used to it. So that is the fundamental principle there. But आपके लिए क्यों प्रॉब्लम है, आप समझिए कि 99% of the population do not walk or do not run with proper mechanics. प्रॉपर मैकेनिक्स का माने, बायोमैकेनिक्स का मतलब है कि हमारी बॉडी किस तरह से बनी है. अगर हमारा पैर किसी शेप में बना है, उसका कुछ उसके पीछे कुछ लॉजिक है, तो वो यही है कि आपको चलना कैसे चाहिए या आपको भागना कैसे चाहिए. तो वो पैर का जो हमारा जो डिजाइन है या किसी भी मसल का, वो इस तरह से बना होता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मूव. और उसके साथ में हमारे पास लेवरेजेस हैं. जैसे हमारे पास लेवरेज है नेक का. अब मैं नेक को ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, जैसे लोग कुछ रखते हैं, या मैं उसको सीधा भी रख सकता हूँ, या मैं उसको मूव कर सकता हूँ जैसे मैं मूव करता हूँ बात करते हुए. तो दीज आर लेवरेजेस. But the problem is that we have started living out of leverages and we have forgotten the original mechanics, the real mechanics. कि
क्या होना चाहिए उसको हमने साइडलाइन लगा दिया, बिकॉज उसके बारे में कोई ज्ञान है नहीं, किसी ने दिया नहीं, और ज्यादातर ट्रेनर्स को बायोमैकेनिक्स का पता भी नहीं होता। तो दैट इज प्रॉब्लम नंबर वन, कि आपके मैकेनिक्स ठीक नहीं है। प्रॉब्लम नंबर टू, कि आप उन गलत मैकेनिक्स के साथ आप ओवरवेट भी हो, विच मीन्स कि एक तो वो जो एक्स्ट्रा वेट था या एक्स्ट्रा फैट था, वो ऑलरेडी एक बॉदरेशन है उस जॉइंट के लिए, किसी भी जॉइंट के लिए, क्योंकि वो हैवी है। और दूसरा, वो सिर्फ हैवी नहीं है पर वो गलत भी चल रहा है। इट इज लाइक सेइंग दैट अ ट्रैक्टर हैज अ कैपेसिटी ऑफ लेट्स से 100 tons and you load 150 tons on it, so A, you have overloaded it, and B, अब उस ट्रैक्टर का एक व्हील मिसअलाइंड है। तो what are the chances of an accident occurring in that case? There is a good chance, right? और तीसरा, आप उसको स्पीड करना चाहते हैं, आप तेज चला रहे हैं, तो अब उनके लिए मैं बात करता हूँ जो बहुत ज्यादा वॉक करते हैं कंसिस्टेंटली, 1 घंटा 1.5 घंटा, बट ना उनका वेट ऊपर नीचे हो रहा है, दे आर मेंटेनिंग देयर हेल्थ एंड दे स्वेट आउट एज वेल। दे some women I see are really very do it very dedicatedly in a focused way, and I really like to see them, because they are sweating, they are putting in every effort, but unfortunately that effort may be causing more problems than it is benefiting। इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों वो जो एक ब्लेसिंग है वो कर्स बन सकती है, क्यों रेगुलर वॉकिंग, नॉन स्टॉप वॉकिंग इज नॉट गुड फॉर पीपल हु आर ओवरवेट, एंड व्हाट दे शुड डू अबाउट इट। तो आइए आप करते हैं इसके डिटेल में बात। तो क्या हो रहा है कि पहला मैंने जैसे बताया कि मैकेनिक्स ठीक नहीं है, ओवरलोडेड है जॉइंट। तीसरा, जब हम उसको रेगुलर उसको चला रहे हैं मिसअलाइंड व्हीकल को, तो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर डैमेज विद एवरी पासिंग डे। अब वो हो सकता है कि किसी को इंजरी 1 साल में, 2 साल में आ जाए, और हो सकता है किसी को 15 साल बाद आए, लेकिन इंजरी has started taking shape when you have started loading your body, overloading your body with overstress. That is problem number one. And this problem is majorly, especially with people, with women who are doing long walks, long periods, and who are also running regularly, besides having a pain or a negative. It's very difficult, in my experience, it's very difficult to tell a runner to stop running and do something else. They don't listen to you because they think running करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, and then they end up breaking. And I've seen many people breaking right in front of me. I mean, while knowing them. तो आप ये समझिए कि अगर आपको कहीं पेन है, तो पहली चीज तो आपको रनिंग एकदम बंद करनी पड़ेगी, immediately, especially if the pain is in the legs, anywhere, hip, knee, ankle, uh, tibialis anterior, माने the front of lower leg, which we call shin pain as well, or anywhere in the foot. Stop running immediately. Find alternative ways to exercise. और बतेरी एक्सरसाइजेस है। तो पहला कॉशन ये कि अगर आपको पेन है कहीं पर भी, तो आप ना ज्यादा वॉकिंग कर सकते हो, ना ज्यादा आप रेगुलर रनिंग करनी चाहिए, और रनिंग तो करनी ही नहीं चाहिए इफ योर पेन इज देयर, बिकॉज देन व्हाट यू आर सेइंग इज कि थोड़ा सा पेन है यार, इसको इंजरी में बदलने दो, फिर हम नी रिप्लेस करवा लेंगे, और ये हो रहा है। दिस इज व्हाई यू सी, आई मीन, नी रिप्लेसमेंट एड्स हैव almost replaced toothpaste ad now. It's that common। आइए नी रिप्लेस कराते हैं, जैसे बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, पर ठीक है, वो एक उपलब्धि है, वो भी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। दे आर ऑल्सो राइट, साइंस इज एडवांस नाउ, विच इज थैंकफुली विच इज ग्रेट फॉर द सोसाइटी। बट हम वहां क्यों जा रहे हैं, हम वहां तक क्यों पहुंच रहे हैं, हमें ये क्यों जिद है कि मैं 7,000 स्टेप ही करूंगी या 10,000 स्टेप ही करना है, रिगार्डलेस ऑफ माई कंडीशन। हम क्यों इतने स्टबन है कि हमें वो करना ही है, चाहे वो पेन ज्यादा पड़ जाए। Why are we so stubborn that after a very tiring day, or due to whatever mental stress, you don't feel like doing anything and you say I'm tired, and then no, but I have to do this। have to वाले पार्ट को इरेज कर दो मेमोरी से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से। दैट इज नॉट अ गुड थिंग।
रीड योर बॉडी, स्पेशली आफ्टर 45 years ऑफ एज, चाहे आप 50 के हैं, चाहे 55 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, हैव टू डजन अप्लाई। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है उस एज में, बिकॉज आप ये समझ चुके हैं कि ये करना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या समझ चाहिए, वो समझ चाहिए कि मैं किस तरह से शरीर को चलाऊं, ऐसे चलाऊं कि ये चलता रहे, ऐसे ना चलाऊं कि ये कल को टूट जाए। So that is the first biggest problem with anybody, not just specifically women, but women के केस में ज्यादा है, because women tend to not go for different exercises, या जिम में कम जाती हैं, या रोजमर्रा की जिंदगी में उनके पास समय नहीं है, they are in a family, तो उन सब के लिए थोड़ा सा problematic एरिया है। तो excuse me, तो स्ट्रक्चर, राइट, पहला which is overweighted, second mechanics, third overdoing. So all these factors are not good for your body. Now, what is good for your body? What do you do if you don't do that? First of all, let me put this very clearly. Gym is an exceptionally good training ground for any woman, any woman who is above the age of 40. You must, regardless of how much resistance you have in your mind, अगर आपके पास जिम की सुविधा है तो आप प्लीज जिम ज्वाइन जरूर करिए, बिकॉज जिम के अंदर एक और फायदा होता है, वो होता है आपका स्ट्रक्चर का, कि आपका स्ट्रक्चरल लाइन होता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, that between the upper body and the lower body, upper body has fiber type which is suitable to gym training, suitable to quick burst of energy which is type 2 fibers, और लोअर बॉडी में टाइप 1 फाइबर ज्यादा होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि कोई भी जिम में जाता है, वन थिंग विच दे ऑलवेज एवरीबडी एग्रीज विद इज दैट यार टांगों को बनाना बहुत मुश्किल है, लेग्स को बनाना, साइज बनाना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सो। अपर बॉडी में मैक्सिमल फाइबर्स दूसरे हैं, तो उसको वो देना चाहिए, because when you are running, yes, you are moving your shoulders and lot of you are moving them in a wrong way, वो भी गलत है, तो वो ज्यादा वर्कआउट नहीं होता। तो जिम, प्लीज ट्राई टू स्टार्ट training in the gym with this understanding that why you need it, because if you keep stressing the lower body, then you are breaking it as well. You have to understand because of poor mechanics. अब मैकेनिक्स ठीक करने बड़े मुश्किल हैं, उसके लिए आपको पर्सनल एक एक्सपर्ट चाहिए, which is unfortunately they are not available in the market. So gym becomes a very important factor there. Secondly, अगर आप लंबा रन करते हैं तो उसको कट शॉर्ट करिए, छोटा रन करिए, छोटे स्प्रिंट्स करिए, मिक्स दैट विद ग्राउंड एक्सरसाइजेस, समटाइम्स डू योगिक पोस्चर्स, योगिक एक्सरसाइजेस, योगिक फ्लो, सब कुछ है योगा के अंदर, या जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज सीक यूट्यूब हेल्प, एक से एक बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं और वो आपको बताएंगे कि कौन से ग्राउंडेड एक्सरसाइज से क्या होता है। अगर आप सिर्फ इतना टाइप कर दें होल बॉडी वर्कआउट फॉर वुमेन, तो आपको ऑप्शन मिलेगी। अगर आप ये टाइप कर दें होल बॉडी वर्कआउट फॉर वुमेन एट होम, तो आपको ऑप्शन मिलेगी। और अगर आप चाहें और अगर आपको लगे कि इसकी जरूरत है, तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। I will be happy to do a complete episode on the training session, training each and every body part of the muscle and show you the basics of it कि कैसे कर सकते हो आप। You do not require, और इसी space में I'll show you how to train the entire body. If you want it, please put it in the comment section. Otherwise, please follow any expert, try to do things and see whether you can find a solution to it. अब बात करते हैं जो लोग वॉक बहुत लंबी करते हैं, सेम थिंग, वॉकिंग करिए, वॉकिंग के बीच में ब्रिस्क वॉक जरूर करिए। सो यू आर वॉकिंग विद एक्स स्पीड, यू डू एक्स प्लस एंड देन यू कम बैक टू एक्स, दैट इज वन। टू, टेक अ ब्रेक, स्टैंड समवेयर, सिट समवेयर। Sitting and standing burn different muscles, calories differently. I'll tell you why and how, but broadly speaking, for this discussion, आप वॉकिंग स्पीड को वेरी करिए, आप रुकिए, आप ट्रेनिंग करिए, आप एक्सरसाइज करिए, अपर बॉडी को और लोअर बैक को स्पेशली। कीप ट्रेनिंग इट इन द ट्रेनिंग एवरी डे, और लाइक आई सेड दैट देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट, तो उसको करिए। फिर अगर आप हल्का सा जॉग कर सकते हैं तो हल्का सा बीच में जॉग करिए, स्टॉप इट, then stop and then walk normally and then again start doing the brisk walk.
एंड दिस अप्लाइज टू women of all ages by the way, कोई किसी भी एज कैटेगरी में हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। अगर आपकी ऐसी एज है या स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप भाग नहीं सकते हो, तो ब्रिस्क वॉक का मतलब, या ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते सो कॉल्ड, पर वो आपके लिए ब्रिस्क वॉक दूसरी है और मेरे लिए ब्रिस्क वॉक कुछ और है। तो मेरी ब्रिस्क वॉक हो सकता है आपकी रनिंग के बराबर हो, बस। तो आप समझिए कि आपके इंडिविजुअल सेल्फ के लिए ब्रिस्क वॉक क्या है। मतलब माने जो आपकी स्पीड है, अगर आप 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 50 साल के हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी जो स्पीड है, आपने उस स्पीड को बढ़ाना है और उसको फिर रुकना है और फिर नॉर्मल स्पीड पे करना है। तो आप उसको वेरी करिए स्पीड को। और ये आप, अगर जो बड़े लोग नहीं सुन पा रहे हैं इसको या नहीं सुनते हैं यूट्यूब को, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल यू गाइस टू प्लीज हेल्प योर पेरेंट्स एंड अंकल्स एंड हुएवर इज योर फैमिली टू हेल्प देम कि कैसे कर सकते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, जो घर पे ट्रेन करते हैं स्पेशली बुजुर्गों के लिए, ट्राई टू वॉक बैकवर्ड। हमारे बैकवर्ड रनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। और मुझे कई बार हैरानगी होती है कि मैं आई थिंक 10-12 साल से, जब मैंने पहली असाइनमेंट ट्रेनिंग की तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज बैकवर्ड रनिंग, एंड एवर सिंस आई हैव बीन डूइंग इट। बट एनीवे, तो बैकवर्ड आप जरूर चलिए घर के अंदर। बुजुर्ग लोगों को स्पेशली जो जिनको नी में प्रॉब्लम है, उनको आराम से एक छोटा सा डिस्टेंस अपना बनाइए, सेफ रखिए, कोई आसपास नहीं है, गिरना नहीं चाहिए। इफ यू नीड द हेल्प ऑफ अ वॉल, प्लीज डू दैट, स्टार्ट वॉकिंग बैकवर्ड एवरी डे। So you, one exercise that I make people do, older people do, is walk backward, and then when you walk forward with speed. जितना भी आपका स्पीड है, जो भी आप तेज कर सकते हैं, and then when you are walking back, you slow down when you are walking back. So that is what you can do. Or normal log jo slightly younger, I would say, who go to the parks and who likes to train as well. So you start walking, and then you do brisk walk, then you stop, and then exercise, and then to follow this regime. People who are in the gym, it's very important. अब आपका क्यों वेट लॉस नहीं हो रहा है? आपके साथ क्या हुआ? आप तो जिम कर रहे हो, यू गॉट नथिंग टू डू विद वॉकिंग एंड रनिंग। आपके साथ क्या हो रहा है? अब आपके साथ ये हो रहा है कि आप एक प्रोग्रेशन में, आप एक एक्स अमाउंट ऑफ वेट पे पहुंच गए। अब मैं अगर मान लो सपोज इट, मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, और मेरी बाइसेप कर्ल मान लो 10 किलो मैं पहुंच गया, और 10 किलो से मैं 10 रैप कर रहा हूँ, और वही 10 किलो मैं आता हूँ और 10 रैप करता हूँ, और वो सालों साल सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि मैं जैसे ही 12:30 पे जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 से, तो मुझे फिर पेन आता है, और फिर मैं कहता हूँ यार 10 ही ठीक है। और हम तकरीबन, जितने लोगों को मैंने देखा है ट्रेन करते हुए जिम में, दे मोर और लेस स्टे अराउंड इन द सेम एरिया ऑफ लोडिंग एंड वेट एंड रैप्स। अब उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कौन सा को क्या डिफरेंस ला सकते हैं? जैसे वॉकिंग के अंदर ब्रिस्क वॉकिंग आती है, जिम के अंदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंक्रीज द रैप्स, फर्स्टली डिक्रीज द लोड। आप 10 किलो से 10 कर रहे हैं, आप 7.5 किलो पे आइए, और 10 से उसको 15 रैप पे ले जाइए। आप फास्ट करिए, आप नॉर्मल स्पीड पे करिए, आप स्पीड वेरी करिए। और एक्सरसाइजेज कोई फैंसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। रिसर्च इज एब्सोल्युटली वेरी क्लियर ऑन दिस, दैट यू जस्ट फॉलो द बेसिक एक्सरसाइजेज एंड यू एंड अप बिल्डिंग द सेम स्ट्रेंथ, द सेम मसल हाइपरट्रॉफी, माने मसल साइज वो आपको चाहिए नहीं होता, बट एवरीथिंग इज सेम। सो डू नॉट get into the fancy aspects of exercising, just keep it simple, basic। तो आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, improve the number of do the number of reps, and then in one exercise you can go slightly higher in weight and then do less reps. So you pick up your favorite exercises like that and do that. And then another adjustment that you can do, supposedly today you do 15 minutes of cardio and half an hour of weight training. And 3 days what you can do, you can reverse the pattern. You can do 3 days 30 minutes of cardio and 15-20 minutes of weight, and it's fine. You will not gain weight. Try it. And if you still do, then please write it in the comment section. तो और कोई अगर इसके आपके दिमाग में कोई सवाल आता है ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्लीज डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। I'll try to attend it personally, and I'll try to give you a solution to that. So that's about exercising, and I think I've covered most of the age groups. And if I have not, then please do put it in the comment, and I'll try to do it separately.
चलिए आगे बात करते हैं अब न्यूट्रिशन की, खाने की। Another surprising element for somebody like me कि women eat less food than men. उनका प्लेटर भी छोटा होता है, उनके खाने की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। वेरी ऑफ्टन दे फास्ट मोर, फास्टिंग भी वो ज्यादा करते हैं। तो फिर क्या इशू आ रहा है, फिर क्यों हम नहीं समझ पा रहे कि वेट लॉस कैसे करना है। अब एक दो चीजें मैंने पिछले एपिसोड में बताई, वो शायद मेरे से रिपीट नहीं हो पाएंगी कि आप कैसे मॉर्निंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, बट आई ट्राई टू कवर इट ब्रॉडली। तो पहली चीज मैंने बताई थी कि आपको सुबह फास्टिंग मोड में एक्सरसाइज करना जरूरी है। सो बिफोर यू पुट एनीथिंग इन योर माउथ, प्लीज ट्राई टू डू सम एक्सरसाइज। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो it is good, but there is no need to repeat that fasting every day. Please do not decrease the amount of calories. I know this is like a controversial statement of sorts, but I challenge anyone who challenges this notion that women in India eat less than they require. हम लोग क्या देखते हैं, या साइंटिफिक वर्ल्ड या कोई भी एक्सपर्ट क्या देखता है, अरे इनका तो पेट है, इनको तो 10-15 किलो ओवरवेट है, आप ऐसा करिए आप खाना छोड़िए, या आप ये छोड़िए आप ये खाइए। सो वी आर ट्राइंग टू look at calories. It's not required in for women. I am quite sure, at least the number of women I have known in my life, none, I have not found a single woman or met a single woman in my life who eats or who overeats, who eat who eats more food than she requires. None. तो मेरे हिसाब से आपकी जो ओवरऑल कैलोरी इनटेक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज अ ब्रिलियंट थिंग टू एक्चुअली फिगर आउट। कि अगर हमें ये पता लग जाए कि मैं जितना खा रही हूं वो ज्यादा नहीं है, तो मुझे इसकी तो टेंशन नहीं है कि मैं ज्यादा खा रही हूँ। तो वो सबसे बड़ी टेंशन है वर्ल्ड में, राइट? न्यूट्रिशन के वर्ल्ड में आदमियों के लिए वो सबसे बड़ी टेंशन है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका जो खाना जो है ओवरऑल वो कम है, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी काफी कम है इन मोस्ट केसेस। जहां ज्यादा है वो ऑफ कोर्स प्लीज रिड्यूस द क्वांटिटीज, बट मोस्टली कम है। तो इसलिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत बड़ा एक, या क्या कहूँ, एक ऐसा टूल नहीं मानता in case of women that they should really kind of practice it too much because they are already eating less. Second, आपके फूड क्वांटम कम है, स्पेशली women. When I see my mother, my aunt or anyone in my family, I think they can do with more food actually. और मैंने बढ़ाया भी है, जिसको मैंने कभी किसी अगर एल्डरली वुमन को अगर मैंने कंसल्ट किया है तो आई एक्चुअली इंक्रीज देयर कैलोरीज एंड देन रिड्यूस देयर वेट। तो अब कैवियाट है इसके अंदर, लोग कहते हैं कि यार आप कैलोरी कम खा रहे हो तो फिर मोटापा क्यों नहीं कम हो रहा। ये मेरा सवाल आप लोगों से है, जो भी ये सोचते हैं कि भाई कैलोरी सब से ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर मोटापा क्यों है। आई शो यू वुमेन जो 2 रोटी दिन में खाती हैं, जो 2 रोटी शाम को खाती हैं, थोड़ी सी दाल या सब्जी उसके साथ लेती है, कोई जंक नहीं है उनकी डाइट में, 2 या 3 कप चाय है, ब्रेकफास्ट भी इक्वली हेल्दी है। न्यूट्रिशन वर्ल्ड का न्यूट्रिशियस फूड अगर आप लिस्ट बनाएंगे 10 चीजों की, तो वो सारे 10 फूड्स उनकी लिस्ट में है, फिर भी मोटापा है, और फिर भी वो मोटापे को कम नहीं कर पा रही। इज इट बिकॉज ऑफ कैलोरीज? नो। तो हो क्या रहा है, इसको समझने के लिए यू हैव टू गो बैक टू माय एपिसोड, द फर्स्ट वन, वेयर आई एक्सप्लेन्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे कम आ जाता है हमारा, कि माने कि हम कम कैसे बर्न कर रहे हैं, जितना हम खा रहे हैं उसमें से क्यों ज्यादा पोर्शन हमारा फैट डिपॉजिट में जा रहा है और बर्न कम हो रहा है, क्यों नहीं हम बर्न ज्यादा कर पा रहे। तो कैलोरी इज आई थिंक is okay with women, if I can say that. Most of the women I can say. अब कैलोरी जब कंसर्न नहीं है तो और क्या कंसर्न है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल वही अप्लाई करते हैं जो मैंने पिछले एपिसोड में किया, वो है कि डिक्रीज और कट डाउन द कार्ब्स फ्रॉम द ब्रेकफास्ट कंप्लीटली।
जीरो कर दीजिए, अगर स्पेशली इफ यू आर ओवरवेट, इन वुमेन स्पेशली, do do not eat carbs in the morning. So what you can eat, again you can google the information क्या क्या और खाने हैं, but broadly speaking I can tell you, you must start eating eggs first of all. I know religious कारणों से नहीं खाते हो, बहुत लेडीज नहीं खाती हैं, but please understand, egg is a vegetarian food. भैंस दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है। अगर हम दूध पी सकते हैं, घी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, तो हम अंडे भी खा सकते हैं। पर ठीक है, फैमिलीज में है और हर जगह शायद पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में अब आई डू नॉट हैव मेनी चॉइसेस टू गिव यू, बट फॉर स्प्राउट्स खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, उसके उससे अच्छा है आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स का मिक्स करके खाइए। या एक और अच्छा फूड है जो हमारे कल्चर में नहीं है जनरली नॉर्थ इंडिया में, वो ओट्स है। सो ओट्स इज वेरी हाई ऑन प्रोटीन, तो ओट्स में कार्ब्स कम है, तो आप ओट्स बनाइए, शायद दूध में ही बनाएंगे, बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं दूध में ही खाता हूँ, मुझे उसी में टेस्टी लगता है। तो दूध लीजिए थोड़ा सा, उसमें ओट्स डालिए, उसके अंदर बादाम, अखरोट, ये फ्लैक्स सीड्स डालिए, और उसके अंदर बाद में थोड़ा सा हनी डालिए। जब आप खाने जब उसको आप बॉल में डाल देते हैं, तो वो हनी थोड़ा सा उसके अंदर मिठास ला देगा, और आपके अंदर एक परफेक्ट हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट तैयार हो गई आपकी। सो दैट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट, एंड आई लव इट। मुझे तो वो खीर की तरह लगती है, मेरा थोड़ा मीठे की तरफ रुझान है, तो मुझे तो मैं तो उसकी खीर बना लेता हूँ। इट्स लाइक आई आई रियली लव इट विद हनी। तो आपका वो ब्रेकफास्ट हुआ, आपने वर्कआउट किया, आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच में आप एक होलसम मील ले लीजिए। अब आपके पास लंच में दो ऑप्शंस हैं, एक है कि आप चावल या रोटी अगर आप खाते हैं तो आप छोले, जो भी हैवी फूड्स हैं, हैवी और लाइट फूड क्या होता है ये भी मैंने पिछले एपिसोड में बताया है, तो राजमा, छोले, ये तमाम चीजें विद दही। दही इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ऐड दही। इफ यू आर नॉट एडिंग दही, हैव दही एवरी डे। Dahi is again the healthiest fermented food in the world, and fortunately we are blessed to have it in our culture. तो हम बचपन से दही खाते आए हैं और उसको कंटिन्यू रखिए। और रात को आप अ, दिन में आपने ये खाया, आपने एक होलसम मील खाई, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको नंबर ऑफ चपातीस देखने की जरूरत नहीं है। दिन है, आप खाइए, आप पेट भर के खाइए, बिकॉज पेट भर के खाएंगे, और अगर पेट भर भर के खाते खाते अगर आपने वेट लॉस किया, तो आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। अगर आपने भूखा रह के कुछ किया, तो आप कब तक भूखे रह सकते हैं? इवेंचुअली यू विल कम डाउन टू द सेम। तो उसके बाद आता है 4-5 बजे का टाइम, विच इज स्नैकिंग टाइम। अब इस टाइम पे माय रिकमेंडेशन ऑलवेज इज फ्रूट्स। आप फ्रूट खाइए, आपको कुछ चटपटा चरचरा कुछ खाना है, या आपका मन है कि सॉल्टी खाने का, तो अगेन यू कैन लुक एट ड्राई फ्रूट्स। मखाना आजकल आते हैं बड़े टेस्टी स्पाइसी, कुछ कुछ आते हैं मखाने, यू कैन ईट। पीनट्स इज नॉट रियली गुड फॉर यू बिकॉज इट इज हाई इन फैट। आई वोंट रिकमेंड, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप पीनट्स खाएं, बट या आलमंड्स एंड ऑल दैट, वो भी सारे सॉल्टी और वो सब आते हैं। काजू ले सकते हैं थोड़े बहुत, बट सिर्फ काजू नहीं। तो स्नैक की ऑप्शन हमारे पास ड्राई फ्रूट्स इंक्लूडिंग दिस स्पाइसी मखानास एंड ऑल दैट, और सेकंड इज फ्रूट, and you can have dry fruit plus fruit, you can have only dry fruits, you can have only fruits, it's up to you। चाय कॉफी जो आपका 4-5 बजे का टाइम है, प्लीज कीप इट, इट्स ऑलराइट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी नीड दैट, वी नीड आवर पॉइजन टू रन थ्रू द डे। एंड देन कम्स डिनर। अब डिनर में आप जितना, डिनर से पहले और इस स्नैक और डिनर के बीच में आपको एक वर्कआउट प्लान करना है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपने स्नैक लिया, देन स्टार्ट मूविंग इन द ऑफिस, बिकॉज मैंने भी ऑफिस में काम किया है, एंड यू ऑलवेज हैव वर्क कि जहां आप उठ के कहीं जा रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट 10 to 15 minutes post that you're moving your body। अगर स्टेयर्स हैं तो उससे अच्छी बात नहीं है, प्लीज गो डाउन द स्टेयर्स एंड कम अप द स्टेयर्स, जस्ट डू इट once, twice, thrice, whatever times you do, and it'll be fantastic, it will do a world of good to you। अब आप शाम को घर आते हैं, जो लोग शाम को वर्कआउट कर रहे हैं, जो घर से काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स हैं, या जो जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए वही है कि स्नैक आपने लिया, उसके आधे घंटे के बाद यू स्टार्ट ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में वही चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने बताया आपको, स्पीड का, इसका, बॉडी पार्ट्स का, इन ऑल दिस 3 पिवट पॉइंट्स यू हैव टू फोकस ऑन। और आपने लाइट फूड खाया, फूड का टाइम
कोई फिक्स नहीं है। आप प्लीज, आई नो पीपल स्ट्रेस के यार सनसेट पे खाना चाहिए, हमारा सर्केडियन रिदम ये कहता है। सर्केडियन रिदम जो कुछ कहता था वो अलग जीवन था। आज हमारा अलग जीवन है। आज हम रात को भी काम करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि जो रात को लोग काम करते हैं तो वो अनहेल्दी ही है, ऐसा नहीं है। तो हमारा रिदम हमने एक हिसाब से नया बनाया है। जल्दी सोना चाहिए, ऑफ कोर्स, आई विल कम टू दैट, बट आप जो भी आपका डिनर टाइम है, कोशिश करिए कि सोने के टाइम से और डिनर टाइम में थोड़ा सा 1 डेढ़ घंटे का डिफरेंस अगर रख सकते हैं, दैट इज वंडरफुल। 2 घंटे का रख सकते हैं, इट इज इवन बेटर। बट जितना ज्यादा वो डिफरेंस होता जाएगा, आप समझिए अगर आपने 7 बजे डिनर किया लेकिन आप सो 12 बजे रहे हैं, और फिर आप उठते हैं 7 8 बजे, एंड देन पीपल से आई एम हंग्री व्हेन आई वेक अप, एंड द रीजन व्हाई यू आर हंग्री व्हेन यू वेक अप इज बिकॉज आपने पहले खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, ऑब्वियसली इट क्रिएटेड हंगर इन द मॉर्निंग। तो उस हंगर के केस में आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपकी नींद पूरी हो जाती है, इफ यू स्लीप वेल, एंड इवन इफ यू आर ईटिंग डिनर एट 7, एंड देन यू if you wake up early, then you will be able to do those exercises that I'm talking about. आप ट्रेनिंग कर सकते हैं फास्टिंग मोड में, and that will help you immensely. तो आपकी 2 टाइम ट्रेनिंग हुआ। एक टाइम आप थोड़ा सा रिग्रेस कर सकते हैं, जिसको आप ट्रेनिंग टाइम बोल सकते हैं। दूसरे टाइम को आप सिर्फ आप रिलैक्सेशन या लाइट ट्रेनिंग कह सकते हैं। तो सुबह शाम जो आपको सूट करता है आप उस हिसाब से करिए। पर अगर आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों मील से पहले, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, यू मस्ट exercise and you must do some kind of physical work to create that hunger in your body. I think this covers uh, both the aspects, the exercise as well as metabolism, nutrition, और जो हार्मोन वाला एस्पेक्ट है, दैट आई विल हैव टू कवर इट इन अ सेपरेट एपिसोड, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं that I like to share with you my knowledge of the subject, and of course there are experts that you can always consult, or there are experts who you can listen to. So I hope you enjoyed the today's episode, and like I said, if you want me to do a complete episode, then please do write it in the comment section on training. I'll show you different exercises, and I'll show you how to train different body parts and how to think of human body and anatomy per se, कि कैसे आपको ट्रेनिंग को परस्यू करना है। और नहीं तो तमाम चीज़ों के लिए आपके पास एक्सपर्ट्स हैं। प्लीज लिसन टू द एक्सपर्ट्स, प्लीज वॉच देयर वीडियोस, एंड यू विल बी एबल टू लर्न क्वाइट अ लॉट। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला आज। यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट weight loss, and I shall be looking forward to your feedback. Please put it in the comment section as and when you start following it. Any practice that I've told you, उसके 2 3 4 एक हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, जब भी आप देना चाहें, please come back to the comment section and I will personally attend to that कि हुआ क्या, because it will be like a citizen research, सोसाइटी रिसर्च में इसको बोलूंगा कि जब आपने किया, आप कहीं लेट से आप हिमाचल में हैं, किसी दूसरे ने फॉलो किया, लेट से वो गुजरात में है, और कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में, कोई दिल्ली में है। अब आप लोगों ने जो मैंने बताया उसको फॉलो किया, तो आपके कमेंट्स ये बताएंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या काम करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग, स्टडिंग रिसर्चेज इज गुड, ब्रिलियंट, बट taking those researches and putting it in the practical environment is a difficult task. It's a clever task. It's an intelligent task, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है। तो जब ये आपके कमेंट्स आएंगे, आई प्रॉमिस यू आई विल डू द एनालिसिस एंड आई विल पुट आउट अ सेपरेट एपिसोड on what worked with people and what percentage of people got benefited by that and what did not work, and we will also try to investigate where and why it did not work, जिस केस में काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और क्या काम हम कर सकते। अब बिफोर आई फिनिश, एक चीज तो क्लियर है दैट दिस टॉपिक रिक्वायर्स फर्दर डिस्कशन, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो एक रामबाण निकालना इसमें से बहुत मुश्किल है। बट एज द ट्रेंड गोज विद मी एंड विद दिस पॉडकास्ट, मैं आपको एक रामबाण देता हूँ, और वो रामबाण है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस,
आपको सुबह फास्टिंग मोड में एक्सरसाइज मूवमेंट करनी ही है। आपका बाकी दिन कैसा है, लीव दैट आउट, लेकिन आपको जो पहला जो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्रेन, एक्सरसाइज, वॉक, वट एवर यू लाइक। अब हम इसको समराइज करते हैं। तो पहले हमने जाना कि मैकेनिक्स कैसे रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी जैसे चलनी चाहिए अगर वो वैसे नहीं चलती है। मैंने नेक का एग्जांपल दिया, लेवरेज का, शोल्डर का इज़ वेरी कॉमन। ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव दिस रोटेटेड शोल्डर्स। आपके ऐसे शोल्डर्स अंदर की तरफ होंगे, तो जब आप ऐसे करते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो मस्कुलैरिटी में बहुत कुछ इम्बैलेंस आ जाता है। तो ऐसे मैकेनिक्स के साथ हम ज़्यादा लोड नहीं दे सकते सिस्टम को। तो चाहे वो हमारी टांगे हों भागने के लिए, चाहे हमारी अपर बॉडी हो जिम बिल्डिंग के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू मेक द मैकेनिक्स राइट। एंड इफ़ वी कैन नॉट डू इट, तो द लीस्ट वी कैन डू, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिक्स हैं उसके साथ भी आप अच्छे से हेल्दी जी सकते हैं। रॉन्ग मैकेनिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको इंजरी आएगी ही आएगी। वो अपना अपना एक थ्रेशोल्ड है, किसी को जल्दी आती है, किसी को आती नहीं है। बट अगर आप रॉन्ग मैकेनिक्स के साथ लोड ज़्यादा दोगे, जैसे मैंने समझाया, एंड बिकॉज यू आर ओवरवेट स्पेशली, तो आप लोड ज़्यादा दे रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, उससे लोड और बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग इनटू एन इंजरी। तो ये मैकेनिक्स के बारे में क्लियर किया मैंने। उसके बाद हमने बात की कैलोरीज की, कि ज़्यादातर मेरे को ऐसा जो देखने को मिला है कि हमारे यहाँ पर, हमारे कंट्री में, विमेन आर नॉट ओवर ईटिंग कैलोरीज। उनकी कैलोरी कंपोनेंट ठीक है, उनका उनका डाइट स्ट्रक्चर कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत कम परसेंट है। तो ज़्यादातर लोग ठीक खाते हैं। तो आप खाने की कटौती ना करके, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लिनिकली ऑल्सो, कि जब भी लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको डाइट शेड्यूल देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में वो बहुत कम खा रहे हैं, बट बिकॉज दे वांट टू ब्रेक फैट और वो फैट लूज करना चाह रहे हैं, तो वो और कम कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज आपको न्यूट्रिशन के लिए, आपको अपने एक बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आपकी बॉडी को चलाता है वो चाहिए ही चाहिए, वो बॉडी के सिस्टम्स को भी चाहिए, हील होने के लिए भी चाहिए। इम्यून सिस्टम भी आपका ऑप्टिमली तभी काम करेगा व्हेन यू आर ईटिंग हेल्दी कैलोरीज एंड राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, नॉट लेस। एक आधे दिन लेस चलेगा, एक आधे दिन ऊपर चलेगा, बट यू हैव टू काइंड ऑफ ईट डिसेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो उसके बारे में जाना हमने। फिर हमने बात की मेटाबॉलिज्म की, कि खाने से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया उसके अंदर कि हमें कार्ब्स को बिल्कुल मिनिमाइज करना है या ज़ीरो करना है ब्रेकफास्ट में। दैट इज़ समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। फिर हमने ब्रेक किया लंच और डिनर में। डिनर में मैं शायद मेंशन करना भूल गया कि मैंने लंच में बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स फूड्स, आप हैवी फूड्स खा सकते हैं, जैसे राजमा चावल, छोले और तमाम ये सब चीज़ें जो भी आप खाते हैं। दही आप ऐड करते हैं उसके अंदर, सैलेड आप ऐड करते हैं उसके अंदर, और डिनर के अंदर आप एक सब्जी ले सकते हैं, और सब्जी के साथ अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी खाइए, नहीं तो सब्जी का क्वांटम बढ़ा के उसका पुलाव टाइप राइस के साथ बनाइए। और दही भी खा सकते हैं, अनलेस यू आर रिएक्टेंट टू दही इन द नाइट, वो आप चेक कर लीजिए, वो सबका अपना अपना होता है। तो आप वेजिटेबल को शाम को खाइए, चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे राइस के साथ खाइए, और दिन में दालें और ये तमाम छोले चावल ये सब खाइए। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, एटलीस्ट फॉर पीपल हु वांट टू ट्राई वेट लॉस, कि एक समय में एक ही चीज़ खाइए, मिक्स मत करिए, दाल सब्जी रोटी इकट्ठी मत खाइए। आई थिंक उसका कारण सिर्फ इतना ही है, जो मेरा हाइपोथेसिस है, कि इट मेक्स एन ऑलरेडी कैलोरी डेंस फूड डेंसर। माने वो ऑलरेडी बहुत थिक है, कैलोरी डेंस है वो फूड, उसके अंदर अगर हमने एक और सब्जी ऐड कर दी, तो चाहे वो सब्जी में लाख गुण है, चाहे वो बहुत अच्छा फाइबर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरे सिस्टम को हाई कैलोरी डेंसिटी का खाना बना रहे हैं। तो उससे उसको ना करें ऐसा। उसके लिए सबसे बढ़िया इलाज जो मुझे सूझा, वो ये सूझा कि आप दाल छोले चावल जो भी आप कुछ खा रहे हो, सिर्फ वो खाइए, एक चीज़ खाइए, और सब्जी खा रहे हैं तो सिर्फ सब्जी खाइए। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, यू कैन इजीली ईट 5-6 वेजिटेबल्स अ वीक। डू दैट एंड दैट विल टेक केयर ऑफ योर रिक्वायर्ड वाइटामिन एंड मिनरल्स, जो भी हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। तो ये हमने यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म को अब पूरी तरह से समझ गए कि हमें डिनर भी आ गया हमारे पास, अब लंच भी हमें पता है और ब्रेकफास्ट भी हमें पता है।
तो उसके बाद करते हैं बात की आपकी जो ट्रेनिंग है वो राइट है रॉन्ग है ये कैसे पता लगाएंगे। उसके दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। पहला है कि आपको वो करने के बाद फटीग कितना आ रहा है, पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे वो महीने में 4 दिन पेन आ रहा है, यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट पेन, क्योंकि पेन अपने आप नहीं ठीक होगा। और वो जिससे पेन आया है वो एक्सरसाइज करते हुए तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता लॉजिकल। उस एक्सरसाइज करते करते कोई पेन आया, हाउ कैन यू अगेन डू द सेम एक्सरसाइज एंड एक्सपेक्ट कि पेन नहीं आएगा। ये आप समझ लीजिए। तो राइट और रॉन्ग ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि पेन नहीं आना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जब भी आपने कोई रिजीम स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट सम ट्रेनिंग रिजीम फ्रॉम टुमारो, आपने कल से कुछ करना शुरू किया, लेट्स से वॉकिंग डिसाइड किया, जिम किया या कुछ भी किया, योगा क्लास स्टार्ट की, तो आप ये देखिए, ये ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे आपके ऊपर काम करता है। 1 महीने कम से कम टाइम दीजिए उसको, कुछ हफ्ते टाइम दीजिए और देखिए वो कैसे काम करता है। यू विल स्टार्ट फीलिंग हंगर डिफरेंटली, यू विल प्रोबेबली एंड अप डाइजेस्टिंग फूड बेटर, क्योंकि आप अलग तरह का स्ट्रेस दे रहे हैं। तो राइट ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो गलत ट्रेनिंग है अगर आपको कुछ हो ही नहीं रहा, कि अगर आप वेट लॉस भी नहीं कर रहे हैं और आपको फटीग भी आ रहा है और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो देन दैट ट्रेनिंग इज नॉट गुड फॉर यू, इवन इफ दैट ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो नहीं हो सकता। अब जैसे हमने ये सारे सब्जेक्ट डिस्कस किए, एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर एपिसोड ऑन दिस, क्योंकि ये अभी बहुत तो सारी और डिटेल्स बाकी हैं इसमें। लेकिन आप एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इट कैन केटर टू मैनी पीपल इन इंडिया। और लोगों को समझ, आप जो शहरों में रहते हैं उनकी एक समझ है, जो छोटे शहरों में रहते हैं वो समझ फिर और कम है, और फिर जो गांव में और जो विलेज बैकग्राउंड से हैं उनकी समझ ही नहीं है। तो ये मेरा एक एफर्ट है ये समझ देने का। बाकी एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, बट एक बेसिक समझ देने का कि क्या प्रोसेस है, और ये समझ सबको चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, if you like what you have heard and if you think that it could benefit society, अगर आपको लगता है कि लोगों के काम आ सकता है, तो आप प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि ये और लोगों तक पहुंच पाए। ये ऐसे ही एल्गोरिदम काम करती है, सो एम आई टोल्ड। तो आप ज़रूर करिए ऐसा, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। एंड इफ़ यू आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग देन प्लीज़ टू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए राममान के साथ, और अगली बार बात करेंगे हम इंजरीज की।